हेलो ऑल, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी रिमेनिंग AILET के क्वेश्चंस। हमने लास्ट वीडियो में 15 क्वेश्चंस जो थे डिस्कस कर लिए थे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का आपका ये क्वेश्चन है, देखो आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे। प्रिंसिपल फैक्ट्स, प्रिंसिपल क्या कह रहा है, न्यूसेंस के बारे में आपके कह रहा है जी। ठीक है, वही के वही समझ आना कि आपका न्यूसेंस का क्वेश्चन है, टॉर्ट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब न्यूसेंस शैल बी डिफाइंड एज यूज ऑफ लैंड इन द मैनर दैट कॉजेज अनरीजनेबल इंटरफेरेंस विद अनदर्स एंजॉयमेंट ऑफ देयर लैंड। ये बात याद रखना, व्हाट इज न्यूसेंस, when someone cause unreasonable interference into the enjoyment of one person's land, so that thing is said that the person has caused, that activity has caused nuisance to the other person, right? One person is there, he is enjoying his land, right? And certain act or certain thing, something has happened which is causing interference in the enjoyment of that particular person, okay, in his own property. Then we term this thing as a nuisance in law of torts. Okay ji, now it is no defense to a claim of nuisance to say that the plaintiff knew of the interference that would be caused. ठीक है जी, so now this principle is saying that it is a no defense to a claim of nuisance to say that the plaintiff was already knowing of, that he already knew that this thing will cause interference, and hence the interference has been caused. Here your principle is saying that it is a no defense, right? Now let us see the facts. There is a village of Zandipur has a centuries old cricket ground which is owned by Zandipur Cricket Club and hosts matches between local teams every week. It is the only sports ground in the village and serves as a critical source of recreation for the villagers, Mr. and Mrs. XYZ. For the villagers, Mr. and Mrs. XYZ purchased a home right on the edge of the cricket ground's boundary. So this is your cricket ground, right? Now Mr. and Mrs. XYZ have bought a home just to the edge of the cricket ground, right? At the edge of the cricket ground, they have purchased a home. Now, balls from the cricket matches frequently fall into their residence garden and have caused severe damage to their windows. They have unsuccessfully tried to request cricket club to install nets around the part of the boundary that is adjacent to their home. They seek to claim nuisance against Zandipur Cricket Club. Now, what we have read in the principle that anything which is unreasonably interfering in the enjoyment of one's own land, that thing is known as nuisance. And in this particular question, though they have requested the cricket club association to install the nets, but they have not, and they have been unsuccessful in this particular thing. Hence, nuisance has been caused by the reason of unreasonable interference, right? So, now they are seeking to claim nuisance against the Zandipur Cricket Club. So, tell me, will that be successful? Yes or no? Answer will be yes. So, let us see the options here. Mr. and Mrs. XYZ will be unsuccessful because it is their fault. They purchased a home on the edge of the cricket ground. Further, the cricket ground is important for the recreation. See, this principle, ये जो आपका A ऑप्शन है, ये जो आपका प्रिंसिपल आपको बात कह रहा है, इसके अगेंस्ट है। ओके, वैसे हमने जब न्यूसेंस के क्वेश्चंस कवर करे थे, इन दैट पर्टिकुलर लेक्चर आई हैव टोल्ड यू that if the person already knew that this we are purchasing a property near to such thing which will cause unreasonable interference, right, then that person can't claim for nuisance. But here in this particular question, your claimants have again and again requested the cricket club to install the nets, though they were knowing that there is an unreasonable interference, but उन्होंने मैच रोकने के लिए नहीं कहा था। लास्ट जब हमने वो क्वेश्चन करा था, जब आपका न्यूसेंस हमने पढ़ा था, तब उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वो कह रहे थे मैच रोक दो।
और मैच ओनली सोर्स ऑफ रिक्रिएशन था, तो उन्होंने बोला था ये इनका सूट जो है सक्सेसफुल नहीं रहेगा, मैच नहीं रोके जाएंगे, बिकॉज उनको पता था उन्होंने ऐसी जगह से में प्रॉपर्टी ली है, अब वो चीज तो होगी होगी। बट इस केस में क्या है, उन्होंने उनको बार बार रिक्वेस्ट करी है नेट लगाने के लिए, जो वो नहीं लगा पा रहे हैं। हेंस अब ये अगर सूट फाइल करेंगे न्यूसेंस का, इनका जो है सूट सक्सेसफुल गिना जाएगा, बिकॉज उनको रीजनेबल इंटरफेरेंस हो रही है, जो मेन एक्ट हो रहा है वो उसको नहीं रोकने को कह रहे हैं, वो जस्ट ये कह रहे हैं आप नेट लगा दो, सो दैट हमारे घर में इतनी न्यूसेंस जो है क्रिएट ना हो, राइट। सो ये आपका पॉइंट आपके प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, सो ये आपका ऑप्शन गलत है। Now, Mr. and Mrs. XYZ will be successful because use of the cricket ground is causing unreasonable interference with the enjoyment of their home. Further, the cricket club cannot claim that Mr. and Mrs. XYZ brought trouble on their head. So, this is your right option. Mr. and Mrs. XYZ will be unsuccessful because even though the ground is a source of interference, it is not reasonable interference. ये भी point आपका गलत है against your principle itself. Now, Mr. and Mrs. XYZ will be successful because they are old and have, see, this is merely a layman वाला meaning, ठीक है, ये आपका reason layman वाला है, that is why it can't be your option. Here only B is your right option because it is talking according to your principle as well, right? And it is showing that why their, claim is successful, because cricket ground is causing them unreasonable interference with their enjoyment of their home, hence which is nuisance in itself, right? And further, the cricket club cannot claim that Mr. and Mrs. XYZ brought trouble on their head, because they are requesting them again and again to install the nets at their part so that no nuisance can be caused, but they are not listening to them, hence the suit will be a successful one. Here B will be your right option. Yeah. Now let us see the next question for today. Any invasion of private property, howsoever minor, is trespass. So here this principle is talking about trespass, ठीक है, trespass of your property, immovable property, unless it is expressly authorized by the law. Police personnel may enter and or search private property only on express authorization from a judicial officer. Yeah. Now let us see the facts. Miss A, a vocal critic of certain policies of the Queen of Asgardia, was due to lead a protest against prevailing government policies. Solely on instructions of the Queen, a police officer secretly entered Miss A's residence to search through her computer and discover her plan for the protest. However, Miss A's laptop was at the repair shop and the police officer was forced to exit Miss A's house after a few seconds. Miss A seeks to sue for trespass. See, here though that police officer was for few seconds, यहाँ क्या लिखा है, चाहे आपकी इन्वेजन माइनर हो, वो कोई फर्क नहीं है, आपने एक बारी किसी की प्रॉपर्टी में इन्वेड कर दिया, हेंस कर दिया, ट्रेसपास आपका जो है हो गया। ओके जी। नाउ अब ये आया है क्वीन के कहने पे, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है जुडिशियल ऑफिसर के कहने पे ही आप जो है किसी के घर में या किसी की सर्च प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप एंटर कर सकते हो, ठीक है जी। सो अगर वो ट्रेसपास के लिए सू कर रही है, उसका सू जो हो सक्सेसफुल हो जाएगा, बिकॉज उसने जो पुलिस ऑफिसर ने ट्रेसपास किया है। ओके जी। नाउ Miss A will be successful since the Queen was planning on quelling dissent through illegal means. देखो ये आपका जो पॉइंट है ये क्यों सही नहीं है। सक्सेसफुल तो ठीक है, उसका ए जो सूट फाइल कर रही है सक्सेसफुल होगा, बट जिसका रीजन है वो गलत है। ओके जी। Miss A will be unsuccessful since the search was authorized by the Queen. Again हमने पढ़ा था should be authorized by the judicial officer. Miss A will be successful since the entry of the police officer constituted an invasion of personal property without authorization from the judicial officer. Again and again, time and again, I'm explaining you people that whensoever such questions, come in your exam, you first thing you have to notice is that what is your principal telling you all about, right, about that certain topic, what all principal is talking about, then see your options, see your facts, and then answer it accordingly. Just
You have to just stick to your principal part. Okay, now Miss A will be unsuccessful since the police officer was at her residence for only a few seconds. See here, few seconds thing doesn't matter. It doesn't matter at all. Whether your trespass was a minor one, hence you invaded one's property, you have committed the offense of trespass. Okay, so this option will be incorrect here. Only C option is correct, and was unable to access her computer. This is immaterial. So here C is your right option. Let us see the answer. Yeah. Now next question. The doctrine of privity mandates that only a party to a contract can claim upon it. We have done this privity to consideration, privity to contract, that third party can't sue. When there is an agreement between the two parties to the contract, right, only those parties can file for any of its damages, right, they can sue each other, but third party can't sue. Only there are certain exceptions to it, right, when there is a certain contract done in the favor of the family arrangement, right, we have done so many exceptions under it, right, जब हम किसी की बेनिफिशियरी के लिए कर देते हैं, ठीक है. So privity of contract and privity of consideration has certain exceptions to it. Otherwise, the doctrine of privity, it says mandatory, that there is a mandatory part to it, that only parties to a contract can claim upon it. No third party can claim upon that particular contract until and unless if that particular third party falls under the certain exceptions. Okay, ji. Now here are the facts. P started the business of manufacturing table lamps which he sold to a distributor Q. Now P has started a business of manufacturing table lamps which he sold to distributor Q, who in turn sold the lamps to the store owner R. So here is the chain. Now P entered into an agreement with Q. अब agreement जी हुआ है P and Q के बीच में, which mandated that Q can only sell the lamps to store owners at a minimum retail price of 50, failing which Q would have to pay P 5 for each lamp. So इनका एग्रीमेंट ये हुआ है कि Q को आगे जो है 50 रुपीज का ही देना पड़ेगा. अगर वो नहीं देगा, failing to which he has to give extra 5 rupees for each lamp which is sold below 50 rupees. Now Q entered into an identical contract with R. अब Q ने क्या करा, Q ने R के साथ कॉन्ट्रैक्ट यही सेम बना लिया, ठीक है, and can only sell the lamps to customers for 50, failing which R would have to pay Q 5. यही इसमें भी सेम ये बना कि आपको भी 50 का सेल करना है, failing which आप मुझे 5 rupees each lamp के दोगे. Now R sold a lamp to customer for 40 and P seeks to claim against R. अब R ने क्या करा, R ने सेल करा 40 का, ठीक है. अब देखो आपको पता है एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ है. मैं आपको दोबारा ये बात समझा देती हूँ विद द अदर पेन. एग्रीमेंट आपका हुआ है P एंड Q का, Q एंड R का. ओके जी, P एंड Q, Q एंड R का. अब देखियो R 40 का बेच रहा है तो कौन उस पे क्लेम कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ Q कर सकता है, ना कि P. ये हमने सेम डिटो केस आपका डुनलॉप टायर्स वाले में पढ़ा था. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस आपका इन रिलेशन टू द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मैंने आपको तभी बताया था कि एज सच इसके जो फैक्ट्स है आप याद कर लो. आपका सेम ऐसा ही क्वेश्चन प्रोपोजिशन बन के आपके एग्जाम में देखा जाता है. देखो लैम्प का बन गया ये क्वेश्चन, उसमें टायर्स का हमने पढ़ा था. डुनलॉप टायर्स वर्सेस सेल्फ्रिज वाला जो हमने केस पढ़ा था वो सेम डिटो इसके फैक्ट्स थे, ठीक है. वही फैक्ट्स यहाँ पे बात करी हुई है. तो हमने क्या पढ़ा था कि पी आर को सू नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ प्रिविटी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट which mandates that only the party to a contract can claim upon it. Okay ji, so if now P is seeking to claim against R, which will be an unsuccessful attempt. Okay ji, now let us see its options. P will not be successful since there is no privity of contract between P and R. फिर से ये बात को आप एक बार फिर से समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट. P का Q के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ओके जी.
अब Q का किसके साथ हुआ है? R के साथ। समझ गए? P का Q के साथ, Q का R के साथ हुआ है। अब जब Q का R के साथ ही हुआ है तब, और P का Q के साथ हुआ है, क्या P अब R को सू कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। समझ गए? दैट इज वाई हियर A इज योर राइट ऑप्शन। ओके, बी विल नॉट बी सक्सेसफुल सिंस आर इज फ्री टू, ये सब बिल्कुल भी नहीं पॉइंट लगेगा आपका। पी विल नॉट बी सक्सेसफुल, सी देखो इसमें सब में लिखा हुआ है पी विल नॉट बी सक्सेसफुल, पी विल नॉट बी सक्सेसफुल। अब आपको कंफ्यूज और टफ कर दिया इन्होंने ये क्वेश्चन। इसका मेन रीजन क्या है? प्रीविटी, ना कि कोई और। ओके जी, पी विल नॉट बी सक्सेसफुल सिंस क्यू हैज नॉट बीन मेड अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स। देखो पार्टी टू प्रोसीडिंग्स नहीं बनाया, ठीक है, पर प्रिंसिपल आपका प्रीविटी की बात कर रहा है, आपने प्रीविटी वाला ऑप्शन जो है वो ही पिक करना है। मैं बार बार आपको समझा रही हूँ, जो प्रिंसिपल में आपके पास लिखी हुई है जस्ट स्टिक टू इट एंड चूज दैट पर्टिकुलर ऑप्शन ओनली, दैट विल बी योर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। ओके जी, नाउ P will not be successful since there is no privity of contract between P and Q। ये पॉइंट क्यों गलत है? बिकॉज P and Q में तो हो गया है ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट, P and R में नहीं हुआ था। अगर P and R में हुआ होता देन हमने कहना था कि P will have a successful attempt of claiming or filing a suit against R। Okay जी, now let us see the next question। Here A is your right answer। Now next question क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट इज एसेंशियल फॉर एन एग्रीमेंट टू बी कंसीडर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। सो वन पार्टी, द हु इज देयर, बोथ पार्टीज हु आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, they should be competent enough, they should have that capacity to enter into a contract। और हमने पढ़ा था इन कैपेसिटी में कौन कौन आते हैं? बिलो 18 years, राइट, देन अनसाउंड माइंड वाले पर्सन, देन इंसॉल्वेंट्स, और उसके आगे बहुत कैटेगरीज हमने चार्ट में ये अच्छे से करा हुआ है आपका टॉपिक। सो कॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट यहाँ क्या बता रहे हैं? एनी पर्सन हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी। सो यहाँ पे आपका पर्टिकुलरली जो प्रिंसिपल है वो मेजॉरिटी वाले फैक्टर की बात कर रहा है। मींस द पर्सन शुड बी अबव द एज ऑफ 18 according to the applicable law and is of sound mind and is disqualified from contracting by any applicable law। वो insolvent नहीं होना चाहिए, sound mind का होना चाहिए और above the age of 18 होना चाहिए। He should have attained the majority, right? Now what is the age of maturity? They are explaining you here, every person shall attain the age of maturity on their completing 18 years of age and not before। Now let us see the facts। Z sought to purchase the property belonging to K, a minor। Now K here is a minor। 2 days before K completed 18 years of age, K really liked Z's offer। Now देखो K के 2 दिन पहले उसने Z ने कहा कि मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी पसंद है, आई वॉन्ट टू बाय, और K को उसका ऑफर जो है अच्छा लगा, ऑफर अच्छा लगा। अभी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुआ है, 2 दिन रहते थे सिर्फ उसके 18 होने के। सो इट्स नॉट अ बिग डील, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करना चाहिए। यहाँ वर्ड क्या है आपका? कॉन्ट्रैक्ट, ना कि ऑफर। ओके जी, नाउ 6 months later they entered into a contract। ठीक है जी, when he देखो 2 दिन रहते थे 18 years का होने में, तो बट ऑफ कोर्स की बात है 6 months बाद वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है। इट मींस यस K has attained the age of maturity, right? Now was K competent to contract? अब हमने ये देखना है कि yes of course इसका आंसर होगा yes, बिकॉज वो 18 का हो चुका था, 2 दिन रहते थे जब उसको पास ऑफर आया, उसको अच्छा लगा था ऑफर, ठीक है, और उसके 6 months बाद वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है। ठीक है, तो ये बात जो थी 2 days बिफोर वाली, इट वाज जस्ट एंड जस्ट टू कंफ्यूज यू, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे ऑफर की बात नहीं हो रही, कॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और वो कॉन्ट्रैक्ट में कब आया था? when he has attained the age of 18 after 6 months to that। okay ji, so let us see the options here। K was not competent to contract because he was influenced by Z। no, not at all। K is competent to contract because he entered into the contract after completing 18 years of age। K was not competent to contract because Z had approached him before। ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में कब आया था? जब वो 18 का हो गया था, उसके 6 months बाद। ठीक है, चाहे 2 दिन रहते थे, 2 days रहते थे, तो 6 months minus 2 days, not a big deal।
18 का तो वो हो गया था ना, बस हमने ये चीज देखनी है। Here B will be your right option. Let us see the answer. या B is your right option. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Acceptance must be communicated to the offerer to constitute a binding contract. तो ये बात कर रहा है जी आपके acceptance की। Okay, mere intention to accept without communication does not lead to a contract. So you just have a mere intention to buy the property or to enter into a contract, or mere intention to accept it. It is just into your mind, but you have not communicated will not make you to enter into a contract, because it was just up to you that you are having an intention to buy it or to enter into a contract with certain person, right? So until unless you have not communicated, you, as I have told you, explained you before, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसकी 3 चीजें हैं, प्रपोजल, देन आगे इसकी एक्सेप्टेंस, देन आगे इसकी कंसिडरेशन। ठीक है, एक्सेप्टेंस जितनी देर कंप्लीट नहीं होगी आप कह ही नहीं सकते कि आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर गए। ओके जी, नाउ जे वांटेड टू परचेज हर अंकल टीज टेलीविजन। अब देखो जी, जे को टी का टीवी खरीदना था। ओके, नाउ जे रोट अ लेटर टू टी इंडिकेटिंग दैट शी विश टू परचेज अ टेलीविजन फॉर 5000। टी वाज प्लीज्ड विद जेज ऑफर एंड डिसाइडेड टू कॉल जे टू एक्सेप्ट द ऑफर। अब देखो, टी को उसका ऑफर अच्छा लगा, उसके अंकल को अच्छा लगा टी को, वो उसने जे को फोन करने के लिए बहुत बार बताएंगे, डिसाइडेड टू कॉल जे टू एक्सेप्ट द ऑफर। नाउ टी ट्राइड टू कॉल जे टू एक्सेप्ट हर ऑफर ऑफ 5000। नाउ टी कॉल्ड जे ट्वाइस बट जे डिड नॉट पिक हर फोन। अब टी ने अपनी तरफ से कम्युनिकेट करने के लिए ट्वाइस उसको फोन करा, बट उसने जो है फोन उठाया नहीं। नाउ the next day T found a buyer for the television for 6000 and sold the television to his buyer. J is alleging breach of contract. अब इस बात में आप बताओ क्या आएगा? Communication was necessary, hence T ने तो ऑफर करा ना, उसे 2 बार उसको फोन करा, बट उसने जो था उसका कहीं से भी फोन नहीं पिक करा। ओके जी, सो हमने इसमें क्या बात देखनी है कि जे अब जो कह रही है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, वो चीज उसकी नहीं मानी जाएगी, बिकॉज टी ने उसको ट्वाइस फोन करा है, हेंस उसकी इंटेंशन दिखी थी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, टू कम्युनिकेट हर, बट उसने पिक नहीं करा, हेंस उसने पिक नहीं करा, टी ने आगे सेल कर दिया, हेंस देयर इज नो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हियर। बट लेट अस सी द ऑप्शंस। जे विल बी सक्सेसफुल बिकॉज इवन दो द कॉन्ट्रैक्ट वाज बाइंडिंग, टी फाउंड अ बायर। कोई बाइंडिंग नहीं था, यहाँ पे आपका ऑप्शन ये गलत हो गया है। जे विल बी सक्सेसफुल बिकॉज टी इज एक्शन ऑफ कॉलिंग जे इज इक्वल टू कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने कॉल करी थी, बट उसने देखो अगेन, अब जो टी ने ट्वाइस कॉल करी थी, उसको ऑफर पसंद था, ठीक है, बट कॉल में उनकी क्या बात होती, एक्सेप्टेंस होती नहीं होती, दैट वाज इमटेरियल। ठीक है, सो दैट इज व्हाई योर दिस पॉइंट इज अगेन रॉन्ग। ओके, नाउ J will be successful because T was happy with J's offer. No, this is immaterial. It's happy and all these things doesn't fall into the legal category, right? So J will be unsuccessful since T's acceptance had not been communicated to constitute a binding contract. Hence इसकी जो communication complete हो जाती, तब हम कहते हैं कि breach of contract जो है T ने कर दिया है, but communication उनकी complete नहीं हुई। He tried to call her twice, she didn't pick the call. Hence he sold that particular TV to another person. Okay, so here D will be your right answer. ये हमने क्वेश्चन कर भी रखा है, हमने कम्युनिकेशन वाला जब हमने कॉन्ट्रैक्ट की क्लास करी थी एमसीक्यू की, उसमें हमने ये क्वेश्चन कवर कर रखा है। ओके जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिलेशन टू द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इन इंस्टेंसेस वेयर बोथ पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक अबाउट अ मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट इज वॉइड। अब आपने ये बात याद रखनी है, जब आपका कोई एग्रीमेंट होता है और बोथ द पार्टीज आर अंडर अ मिस्टेक ड्यू टू सर्टेन पर्टिकुलर फैक्ट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, किसी चीज की हो रही है, उसमें वही जो मेन आपका एसेंशियल है उसी में कि आप मिस्टेक में हो, तब आपका कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो होता है वॉइड बन जाता है। यहाँ पे ये बात वो कह रहे हैं, जब आपका मटेरियल फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता तब वॉइडेबल भी हो जाता है, बट जब आपका वो मैटर ऑफ फैक्ट इसेंशियल है एग्रीमेंट का और उसी की आप मिस्टेक में हो, तब आपका जो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा जी, वॉइड हो जाएगा। ओके, नाउ हमने अब इसमें देखने हैं आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं।
L agrees to sell to M a consignment of food grains which was supposed to be on ship on its way from Africa to Mumbai. However, 2 days before the agreement was reached, the ship carrying the grains met with an accident and all the goods were lost. Now, L's agent had informed L about this on the day the accident happened. Is the agreement void because mistake as to matter of fact? अब हमने इसमें क्या देखना है कि क्या मिस्टेक मैटर ऑफ फैक्ट में जो मेन पॉइंट है वो हुआ है, तो हमने ये डिसाइड करना है कि इसका एग्रीमेंट जो है वॉइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है जी, इसमें आप सबसे पहले ये बात यहाँ नोटिस करो, देखो जैसे आपको ऐसे फैक्ट्स आते हैं साथ में कैसे आपने रफ वर्क करना है। पहला, एल का एम के साथ जी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, उसमें क्या था, शिप पानी थी अफ्रीका टू मुंबई, ठीक है। 2 days before the agreement was reached, the ship carrying the grains met with an accident and all the goods were lost. अब जिस दिन 2 दिन पहले ये चीज हुई है और एल के एजेंट ने, एल का जो एजेंट था उसने एल को इन्फॉर्म कर दिया था ऑन द डे द एक्सीडेंट हैड हैपेंड। तो एक्सीडेंट 2 दिन पहले हुआ था, तो एल को इट मींस 2 दिन पहले ये बात पता थी। इज द एग्रीमेंट वॉइड बिकॉज ऑफ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट? एग्रीमेंट यहाँ पे तो वॉइड होना था अगर एल को भी ना पता होता। अब एल को पता था तो हम नहीं कहेंगे कि कोई मिस्टेक ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट के दौरान के अंदर आपका एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, बिकॉज एल वॉज अवेयर। 2 दिन पहले ही जिस दिन एक्सटेंड हुआ, एल वॉज वेरी मच अवेयर। ओके जी, लेट अस सी, यस सिंस बोथ पार्टीज कमिटेड अ मिस्टेक बाय एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। यस तब आता जब एल को भी ना पता होता, यहाँ एल को पता था। नो सिंस एल हैज, यहाँ देखो डिसऑनेस्ट इंटेंशंस इसकी कुछ भी नहीं दिख रही हैं। अगर यहाँ पे लाइन आपकी लिखी होती कि एल हैड डिसऑनेस्ट इंटेंशंस एंड सो ऑन, देन तब हमने ये आंसर को टिक करना था। ओके जी, नाउ नो सिंस एल वाज अवेयर दैट द गुड्स वर लॉस्ट, यस ये बात आपकी इसमें लिखी हुई है, हेंस दिस विल बी योर आंसर। ओके जी, सो हियर सी विल बी योर आंसर। लेट अस सी, यस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोथ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट आर डिस्चार्ज from the respective outstanding obligations in situations where a supervening event significantly changed the nature of contractual rights and obligations from what the parties could have reasonably contemplated at the time of executing the contract। यहाँ पे देखो जी ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहा है। सुपरवेनिंग इवेंट आ गया कि किसी की भी कोई गलती नहीं होती, हेंस कॉन्ट्रैक्ट आप एंटर कर जाते हो, वो वॉइड बन जाता है। ठीक है, so the supervening event must not be the result of default by either party nor should the contract make a provision for it। yes, जब हमने डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पढ़ा था उसमें बताया, हमने पढ़ा था कि वो आपने खुद ने नहीं करा होना चाहिए, ठीक है ना ही, और वो जो सुपरवेनिंग इवेंट आपकी पहुंच से भी बाहर हुआ, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, तब आपका डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है। ओके जी, नाउ फैक्ट्स पढ़ते हैं। इन द सिटी ऑफ विक्टोरिया व्हिच इज हाईली सस्पेक्टेबल टू अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस एस अ सप्लायर ऑफ रॉ फूड प्रोडक्ट्स एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद एच। अब एस का किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? एच के साथ हुआ है, ठीक है। रेस्टोरेंट ओनर फॉर 2 years whereby S would supply certain raw products to H at a predetermined prices। Their agreement also provided that in case of interruption of operations of H on account of epidemics, pandemics or any other public health crisis, the contract will be suspended until the crisis is declared to be over by the government and thereafter pending contractual obligations shall resume। ये हमने कहाँ पढ़ा था ये चीज? ये जो उन्होंने क्लॉज डाला है हमने कहाँ पढ़ा था? ये पढ़ा था हमने फोर्स मेजॉर, जब हमने डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन करा था तब हमने पढ़ा था ये फोर्स मेजॉर। तो यहाँ पे उन्होंने वही वाला क्लॉज लगा दिया है कि until unless, जितनी देर तक ये पेंडेमिक ठीक नहीं होता, हमारी जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस है वो सस्पेंडेड रहेंगी। उसके बाद जब ये ठीक हो जाएगा तो जो पेंडिंग हमारा काम कॉन्ट्रैक्ट का रह जाएगा फिर हम वो कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात इन्होंने यहाँ पे लिख दी अपने कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ है। 3 months were left to the contract when there was a highly contagious virus outbreak in the city which caused restaurant owners including H to suspend operations। Once the outbreak was declared to be over 6 months later, H refused to purchase raw materials from S, arguing that he was discharged from the obligations under the contract। ये बात उसकी गलत है because he is not discharged at। उन्होंने अपने एग्रीमेंट में लिखा था
कि जो पेंडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस रह जाएंगी वो जब ये पेंडेमिक खत्म हो जाएगा इट विल रिज्यूम। 3 मंथ्स उसके रहते थे, जब एकदम से उसका कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब वो आउटब्रेक आया उसका कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हो गया। और कब रिज्यूम हो जाना था, जब वो ठीक हो गया पेंडेमिक की, जब उनकी रिस्ट्रिक्शंस उतर गई, फिर उसके बाद जो 3 मंथ्स थे वो उसके पूरे होने थे, रिज्यूम हो जाना था कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इन्होंने फोर्स मेजोर का यहाँ पे क्योंकि क्लॉज डाला हुआ था। ठीक है जी, तो देखो बारी बारी आपका फोर्स मेजोर डॉक्ट्रिन फ्रस्ट्रेशन आ रहा है बिकॉज इट इज वेरी मच प्रेवलेंट, बहुत ये यूज हुआ था ड्यूरिंग द कोरोना वायरस। ओके जी, सॉरी ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पे। नाउ अब हम देखो आपने यहाँ पे सारा समझ लिया ना इसका क्या 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 इसके क्लॉजेस थे। अब वो कह रहा है आई एम डिस्चार्ज फ्रॉम योर ऑब्लिगेशन, हमने डिसाइड करना है कि उसको क्या करना पड़ेगा। तो हमने तो पढ़ ही लिया है कि ही इज नॉट डिस्चार्ज बिकॉज 3 मंथ्स उसके रहते थे, अब उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रिज्यूम होगा। क्या कह रहे हैं, एच इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशंस, नो नॉट एट ऑल बिकॉज द वायरस आउटब्रेक वाज सुपरवीनिंग इवेंट व्हिच चेंज्ड द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। सी अगेन ये आपका जो ए रीजन है बड़ा टफ है। क्यों ये ऑप्शन आपका गलत है, क्यों? अपने आप में वो सही बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सिर्फ आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की आगे जो फोर्स मेजॉर भी अब लगने लग गया है उसकी बात नहीं कर रहा, जो उन्होंने ऑलरेडी अपने कॉन्ट्रैक्ट में लगाया हुआ था। ओके जी, दैट इज व्हाई योर ए ऑप्शन इज हियर इनकरेक्ट। Now, H is not discharged from his obligations because the contract contained a provision which is of force majeure dealing with the outbreak. Further, the parties could have reasonably contemplated the occurrence of an outbreak. Yes, this will be your right answer. H is not discharged from his obligations because contract had ended by the time of virus. देखो ये बिल्कुल गलत है, एंड तब वो सस्पेंड हुआ था, फिर वो रिज्यूम हो जाना था जब उसका आउटब्रेक वो जो चीज थी वो खत्म हो जानी थी। ओके जी, नाउ एच इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशंस बिकॉज आउटब्रेक इज लाइकली टू हैव अफेक्टेड हिज बिजनेस बैडली। बिल्कुल गलत, हमने पढ़ा था बिजनेस को अफेक्ट करे ना करे दैट इज इमटेरियल, ये एक्सेप्शन नहीं होगी। मतलब हमने क्या पढ़ा था कि आपका जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है वो तब नहीं लगेगा अगर आपका बिजनेस को वो कोई लॉसेस हुए हैं। ठीक है ना, वो चीज नहीं यहाँ पे हम देखेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे सुपरवीनिंग इवेंट देखेंगे जो आपकी पहुंच से बाहर है और आपने ना कॉज किया हो। ठीक है, तब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है तब वॉइड होता है। ओके, बिजनेस में लॉसेस हुए हैं नहीं हुए इससे नहीं होता। ओके जी, सो हेयर बी विल बी योर राइट आंसर। अगर आपने मेरा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन और फोर्स मेजॉर का अच्छे से समझा है, उसके क्वेश्चंस वाला देख लो, नहीं तो उसमें भी मैंने वो एक एक चीज दोबारा समझाई हुई है। क्वेश्चन सेक्शन देख लो, आपको ये टॉपिक इजीली कवर मतलब आप कर लोगे, इसको वेरी इजी लगेगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। बिकॉज बच्चों को डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन समझ ही नहीं लगता वर्ड से कि क्या कह रहा है। ओके जी, ना ही फोर्स मेजॉर समझ लगता है। तो ये आपके मेन सेंटर बन जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, टू चेक योर थ्योरी नॉलेज। नाउ है बी इज योर राइट आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When a defendant brings out their land anything that is likely to do mischief in case it escapes, they must do so as its own at their own peril. Which, if such a thing does escape and causes forcible harm, then the defendant is liable for damage caused, provided the land from which escape occurs had been changed, that it would be considered a non-natural use of the land. The defendant can avoid liability if they can show that the situation that caused damage was the result of unforeseen act of a stranger which could not be controlled by the defendant. ये आपका टॉर्ट्स का क्वेश्चन है। ये टॉपिक अभी हमने कवर करना है, ये लाइबिलिटीज की बात कर रहा है। अब देखते हैं, M decided to keep a tiger as a pet and to that end he brought a caged tiger to his house. Jealous of M's pet, M's neighbor S, whom M had never met, decided to break into M's heavily guarded house while M was away and open the tiger's cage. The tiger escaped and mauled the pedestrians near the house. The pedestrians wished to sue M for damages. ये इसमें जो है ना आपकी लाइबिलिटी की बात हो रही है, जिसपे हम कह देते हैं कि लाइबिलिटी दूसरे पे आ जाती है। ठीक है, हमने पेट वाला करा था जब हमने प्राइवेट डिफेंस के अंडर, जब हमने डिफेंस देखे थे इसके
आपके टॉट्स के उसके उसके अंडर हमने करा था, ठीक है, कि कोई अपने घर में डॉग रख रहा है, ठीक है, बट बाहर आपको लगाना भी जरूरी होता है कि यू हैव दिस, यू बीवेयर ऑफ डॉग एंड ऑल दैट नोटिस आपको लगाना जरूरी होता है, सो दैट कि और पर्सन आपके घर में एंटर हो जाए, ठीक है, उसको पता हो दैट द प्लेंटिफ हिमसेल्फ विल बी द रॉन्ग डूअर। जब बाहर बोर्ड लगा हुआ है, वो खुद एंटर हो रहा है, तो प्लेंटिफ हिमसेल्फ विल बी द रॉन्ग डूअर। बट आपने अगर बोर्ड नहीं लगाया रखा, आप कह रहे हो प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर है, तो वैसे फिर प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर जो है नहीं होता है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसके ऑप्शंस के ऊपर। देखो, the pedestrians will be successful because it is illegal to keep tiger as a pet. The pedestrians can claim against M because he brought a dangerous thing onto his land amounting to non-natural use and it escaped causing foreseeable damage. The escape should have been foreseen by M. M can escape liability because the escape was caused by the unforeseeable act of stranger which could not have been controlled by M. This will be your right option because ये बात आपके प्रिंसिपल में भी लिखी हुई है, ठीक है। When a defendant brings onto their land anything that is likely to do a mischief in case it escapes, यहाँ पे कौन escape हुआ था? आपका टाइगर। Now they must do so at their own peril. If such a thing does escape and causes foreseeable harm, then the defendant is liable. अब देखो, वो खुद ब खुद जो लेके आया था, एम लेके आया था, वो करता ऐसे काम, वो टाइगर खुला छोड़ देता, तब हमने कहना था कि एम इज लायबल फॉर द डैमेज, ठीक है। नाउ which escapes occurs had been changed such that it would be considered a non-natural use of land. Now the defendant can avoid liability. Defendant अपनी liability कब avoid कर सकता है? If they can show that the situation that caused damage was a result of unforeseeable act of a stranger. यहाँ पे उसके नेबर ने करा है जिसको वो कभी मिला भी नहीं था, यहाँ पे ये बात साफ साफ लिखी भी हुई है, ओके, which could not be controlled by the defendant. डिफेंडेंट को नहीं पता था, तो इस केस में वो अपनी लायबिलिटी जो है अवॉइड कर सकता है। तभी मैं आपको कह रही हूं, आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसी बात आती है, देखो प्रिंसिपल में ही आपका आंसर छुपा होता है, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है इस केस में? आपको प्रिंसिपल पढ़ना है, फैक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है, फिर ऑप्शंस देखो, फिर दोबारा प्रिंसिपल पढ़ो, आपका वहीं के वहीं आंसर लिखा हुआ है, यहाँ साफ साफ ये बात लिखी हुई है। सो हम कह सकते हैं M can escape, he can avoid the liability because the escape was caused by the unforeseeable act of a stranger which could not be controlled by M. Hence C is your right option. Yes. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Agreements, the meaning of which is not certain or capable of being made certain or what. देखो कहते हैं एग्रीमेंट जिनका मीनिंग या उनकी जो सर्टेनिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, विच इज नॉट सर्टेन, जहां पे कहीं पे आपकी क्वांटिटी सर्टेन नहीं है, कंसिडरेशन सर्टेन नहीं है, पता ही नहीं कितनी चीज खरीदनी है, कितने की खरीदनी है, जितनी देर तक ये चीजें आपकी सर्टेन नहीं होती तो आपका एग्रीमेंट जो है वॉइड रहता है, ओके। सो आपके कॉन्ट्रैक्ट में देयर शुड बी एन एग्रीमेंट फॉर अ सर्टेन थिंग एट अ सर्टेन प्राइस एट अ सर्टेन कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या है? लेन देन है आपका, ठीक है, वो ही नहीं आपका परफेक्ट होगा, सर्टेन होगा ना, आपको पता है आप कितने दे रहे हो, कितना ले रहे हो, दैट शुड बी सर्टेन फॉर एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट टू कंसीडर इट टू बी अ वैलिड एग्रीमेंट, ओके जी। तो यहाँ पे यही बात उन्होंने बताई हुई है। अब हम चलते हैं इसके फैक्ट्स के ऊपर। Ela Nayak wants to buy a motorbike to reduce her waiting time for her daily commute to work. She can pay up to 35,000 for a second-hand motorbike. Dev Patnaik agrees to sell his recently purchased Honda Mike to Ela for 31,000 or 30,000. यहाँ पे देखिए जी, consideration is not certain, ठीक है। अब इसके चलते हैं हम फैक्ट्स के ऊपर। This is a valid agreement since Ela can pay. देखो Ela तो पे कर रही है 35,000 तक, बट देव ने अपनी कोटेशन ही नहीं सही बताई हुई, 30-31 बोल रहा है वो, ओके। दिस एग्रीमेंट इज वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, यस, बिकॉज देव इज नॉट कोटिंग एग्जैक्ट प्राइस सिंस देयर इज नथिंग टू शो व्हिच ऑफ द टू प्राइजेस हैज फाइनली बीन एग्रीड अपॉन, ओके जी। दिस विल बी योर राइट आंसर। दिस एग्रीमेंट इज वॉइडेबल
voidable की बात ही नहीं हो रही आपके इसमें, void की बात हो रही है. ओके, दिस एग्रीमेंट इज वैलिड, देयर इज एन ऑफर फ्रॉम देव एंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम ईला. ये तब होती है अगर वो एग्जैक्ट कोट करता है, पता ही नहीं लग रहा हमें ईला 31 की ले रही है कि 30 की ले रही है, हेंस दिस एग्रीमेंट इज void. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर void. अगेन void की बात हो रही है यहाँ पे, एग्रीमेंट की जिसका यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है वो void होते हैं. Facts देखो, Ila Naik wants to buy a motorbike to reduce her waiting time for a daily commute to work. She can pay up to 35,000 for a second-hand motorbike. Dev and Ila agree that Ila will initially pay a sum of 31,000 for the motorbike, and if the mileage given by the motorbike exceeds 60 km per liter on an average for 5 months following the sale, then Ila will pay an additional sum of 3,000. अब हमने ये देखना है कि वैलिड एग्रीमेंट है कि नहीं है. तो इनका जो एग्रीमेंट हुआ है वो 31,000 का हुआ है. उसके बाद इन्होंने आगे एक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, कंडीशनल फ्यूचरिस्टिक कॉन्ट्रैक्ट जो इनका क्या हुआ है, जो है मे और मे नॉट पे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. ठीक है जी, वो क्या कह रहे हैं कि अगर फॉर 5 months मोटरबाइक माइलेज गिवन बाय द मोटरबाइक एक्सीड्स 60 किलोमीटर. अब उसकी जो माइलेज थी 60 किलोमीटर पर लीटर से बढ़ी, एक्सीड हुई ऑन एन एवरेज फॉर 5 months फॉलोइंग द सेल. 5 months पे उसने देखना है सेल के बाद, अगर 60 किलोमीटर पर लीटर हुई तब वो उसको एडिशनल 3,000 और दे देगी. ये अलग कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इनका, इससे इस यहाँ तक इनका अलग है. फिर एक अलग से इनका फ्यूचरिस्टिक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है हो रखा है. हेंस एग्रीमेंट तो जी इसका वैलिड ही होगा. दिस इज एन इनवैलिड एग्रीमेंट, ईला इज नॉट पेइंग, ये कोई बात नहीं है, उन्होंने अलग से कॉन्ट्रैक्ट करा है. ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं दे रखा. चलो, दिस इज अ वैलिड एग्रीमेंट as the price of the motorbike is capable of, समझ रहे हो ना, of being made certain. Yes, this is an invalid agreement because capable price is 31,000. जो अलग से उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट कराया है वो 3,000 वाला, वो मे और मे नॉट है. ओके जी, नाउ दिस इज द वैलिड एग्रीमेंट as Ila has already paid 31,000 rupees which was accepted by Dev. यहाँ तक तो ठीक है, बट उसके बाद जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा उसकी इस ऑप्शन में बात नहीं करी गई है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन हम पिक नहीं करेंगे. दिस इज एन इनवैलिड एग्रीमेंट सिंस देव एंड ईला कैन डिसएग्री इफ द मोटरबाइक वाज एक्चुअली गिवन टू अ माइलेज. ये पॉइंट यहाँ पे गलत है बिकॉज वो उनका फ्यूचरिस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है, ये इनवैलिड इस उसके ऊपर हम नहीं कह सकते. हेंस उसका एग्रीमेंट जो वैलिड है बिकॉज 31,000 वाला उनका जो एक एग्रीमेंट हो रखा है, जिन्होंने नेक्स्ट करा है 5 months की ड्यूरेशन के लिए, वो मे और मे नॉट है. 60 किलोमीटर पर लीटर जो भी उसने देखना हमने पढ़ा था वो कितना देगी, 3,000 देगी. ये अलग कॉन्ट्रैक्ट है. ओके जी, नाउ लास्ट बी इज योर ऑप्शन. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे जो आपका AILET में आए थे 26 क्वेश्चन, तो ये लास्ट क्वेश्चन है. Damages consequent to a breach of contract seek to compensate the innocent party for the loss suffered by it. So the innocent party is put in the same situation with respect to damages so far as money can do it as if the contract have been performed. So यहाँ पे देखिए जी कॉन्ट्रैक्ट के डैमेजेस की बात हो रही है. इसमें ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब होता है, आपको पता है बहुत सारे डैमेजेस जो है, मतलब बहुत सारे आप जो है इसमें क्लेम कर सकते हो अपने लिए रेमेडीज. तो एक था आपका डैमेजेस क्लेम करना, कंपनसेशन, या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करवा लेते हो, इंजंक्शन ले लेते हो. बहुत सारी हमने रेमेडीज इसमें पढ़ी हुई हैं. तो ये पर्टिकुलरली आपकी जो रेमेडी है ये बात कर रही है डैमेजेस की, जिसमें इनोसेंट पार्टी जिसने लॉस सफर करा है वो कह रहे हैं कि इनोसेंट पार्टी इज पुट इन द सेम सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू द डैमेजेस सो फार एज मनी कैन डू इट एज इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन परफॉर्म. तो उन्हें ये देखना है कि कितना उनका जब लॉस होता है तब वो मनी के थ्रू जो ये सोच के दे देते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अगर परफॉर्म हो जाता तो इतने इनको मनी का बेनिफिट्स होने थे, इतना लॉस हो गया, वो कवर करवा देते हैं. सो इसमें बेसिकली आपने क्या देखा है, जो रेमेडी की बात हो रही है, किसकी रेमेडी, कौन सी रेमेडी की बात हो रही है, डैमेजेस की बात.
डैमेजेस पता है ना आपको क्या होती है, कंपनसेशन होती है मॉनेटरी लॉस में जो आपको मनी के थ्रू रिलीफ मिल जाता है। ओके जी, नाउ फैक्ट्स। A agrees to sell 30 kgs of strawberries to B, knowing that B uses a strawberry to run his juice center. अब देखिए जी, A ने क्या करा है, B के साथ एग्रीमेंट आया है to sell strawberries. B's juice center is located off St. John's College of Delhi University and is very popular with the students. A supplies substandard qualities of strawberries to B. अब देखो A ने क्या करा, B को substandard strawberries जो थी प्रोवाइड कर दी। However, B is able to use all the strawberries for his juice center. None of the customer of B are able to make out the difference or complain about the juice, or for that matter face any issues after drinking the juice. Can B recover damages from A? अब देखिए, अब इस केस में आप समझो, A और B में एग्रीमेंट तो हुआ, 30 kgs उसने स्ट्रॉबेरीज का एग्रीमेंट करा, ठीक है। अब उसने क्या करा, A ने सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की जो थी स्ट्रॉबेरीज इसको प्रोवाइड कर दी, बट किसी भी कह रहे हैं कस्टमर ने जी कोई कंप्लेंट नहीं करी, ठीक है, किसी को पता भी नहीं चला। अब जब उसको कोई ऐसा लॉस ही नहीं हुआ, यहाँ पे बी को जो वहां पे जूस बेचता है उसको कोई लॉस ही नहीं हुआ, या तो होता है वो कस्टमर आके उसको बोलता उसका बहुत लॉस हो जाता, फिर कस्टमर आने बंद हो जाते, उसको इतना लॉस हो जाता, तब तो वो अपने डैमेजेस क्लेम भी करता, ठीक है। यहाँ पे वो ऐसे कौन से डैमेजेस क्लेम करेगा, कोई भी नहीं। आपके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपनसेट द इनोसेंट पार्टी फॉर द लॉस सफर्ड बाय इट, यहाँ पे इसने कोई लॉस जो है सफर करा ही नहीं है, हेंस कैन बी रिकवर डैमेजेस फ्रॉम ए, आंसर विल बी नो। ओके, ए इज लायबल टू कंपनसेट बी फॉर, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो अगर वो उसको बोलता तब पहले ही, लेने से पहले ही वो बोल देता कि देखो मैं नहीं चाहता, तब अलग बात थी। यहाँ पे उसको ऐसा कोई मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ है, hence A is not liable to compensate B since B suffers no monetary loss. Okay जी, here B is your right answer. Now A is not liable to compensate B because the contract did not prevent A from supplying substandard quality strawberries. ये पॉइंट आपका गलत है, बिकॉज हम बात क्या कर रहे हैं डैमेजेस की, डैमेजेस कब उसको मिलने थे, जब उसका कोई मॉनेटरी लॉस होता, उसको कोई मॉनेटरी लॉस हुआ ही नहीं है, सो वी विल स्टिक टू दिस पर्टिकुलर ऑप्शन ओनली। ओके जी, नाउ A is not liable to compensate B since none of the customers of B have proceeded against A for supplying bad quality of strawberry juice. ये बात तब आनी थी इसके नेक्स्ट। पहला पॉइंट, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर इज बी, बिकॉज उसको कोई मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, कैन बी रिकवर डैमेजेस, डैमेजेस तो रिकवर करता, अगर उसको मॉनेटरी लॉस होता तो हमने सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन के साथ स्टिक कर जाना है, जबकि हमें सी भी ठीक लगेगा, डी भी ठीक लगेगा। ओके जी, बट बात हमारी मॉनेटरी लॉस पे हुई है, डैमेजेस तभी क्लेम कर सकते हैं, आपके प्रिंसिपल में भी ये बात लिखी हुई है। सो हियर बी विल बी योर राइट आंसर। ओके जी, सो लेट अस सी द आंसर बी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कवर आपके आईआईएलटी के 2021 के। आई होप अब आपको समझ लग गया होगा कैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है जी। कुछ क्या क्या टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से आपके सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है क्लैट के लिए, ठीक है, आपको थोड़ा और रिफाइन हो गया होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो वेरी मच।